Very good morning, students. I welcome all of you to this session. आज मैंने किया था आपके साथ वादा कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन पे कुछ और लेक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे ऑन इमर डिमांड, जो आपकी डिमांड थी. मैंने मैंने तकरीबन 4 लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए. बेसिक्स मैंने बताया मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, और फिर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर किए थे आपके साथ. आज मैं और 1-2 लेक्चर्स आपके साथ करूँगा. ये 5th लेक्चर है एक्चुअली ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन. ये एप्लीकेशन पार्ट अब आ रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन का. तो मैं कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया. इट इज़ यू हैव टू प्रूव. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 10 raised to power 2 raised power 2n minus 1. It is actually 10 raised to power 2n minus 1. This way, 10 raised power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 for all positive integers n. For all natural numbers n, or for all positive integers n, you will prove. How you prove that 10 raised power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11? Or this question may be asked in this way also. Prove by mathematical induction that 10 raised power 2n minus 1 plus 1 is multiple of 11. It is a multiple of 11 or it is divisible by 11. It is one and the same thing. Let us have the proof. तो आपको पता है कि हम कैसे जा रहे हैं. तो हम ये स्टेटमेंट जो हमारे पास है, इसको हम डिनोट करते हैं Pn से या Sn से, whatever you write. We write, let the given statement P of n be equal to 10 raised power 2n minus 1 plus 1. Here you have for all n जो है, it belongs to set of natural numbers or you may say positive integers. हमें दिखाना है कि for every value of n, whatever value of n you assign positive integer और natural number जो है, आपको आएगा 10 raised to 2n minus 1 plus 1 always divisible by 11 or it is a multiple of 11. तो आपको पता है 3 स्टेप्स आते हैं इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन में. You have the basis setup, you verify the result for n equal to 1. तो फिर you have the assumption setup, you assume it for some positive integer, for finite positive integer. Then you will prove that if we go one step ahead of that positive integer, if you assume it for n equal to m, then you have to verify that it is also true for n equal to m plus 1. That is the beauty of this mathematical induction. You can prove big results with the help of this mathematical induction in 3 steps, but the condition is that it must involve a natural number or positive integer. Okay. Let us see how we go. I have first basic setup. What we do in this setup, we have for n equal to 1, what is P of 1? It is 10 raised to power 2 into 1 minus 1 plus 1. It is only 10 raised to power 2 minus 1 plus 1. This is 10 raised to power 1 plus 1. This is 11. Yes, it is divisible by 11. 11 को आप डिवाइड कर सकते हैं 11 के साथ. 11 is a multiple of 11. 11 into 1. So this implies yes. A result holds true for what? For n equal to 1. P of 1 is divisible by 11. इसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं. यानी कि पहला सेटअप तो सही निकला. अगर पहला सेटअप ही गलत निकलेगा, फॉल्स निकलेगा, then you have to stop. You have to prove that, you have to write that it is not possible that it is multiple by 11. लेकिन 1 पे निकला. फिर हमें इसके बाद कौन सा सेटअप है? Yes, it is assumption setup. Assumption setup में क्या हम करते हैं? We assume the result. We take it for granted for some positive but finite
integer, positive integer, finite positive integer. Here we assume, let us assume that given statement holds true for n is equal to k, k being some fixed पॉजिटिव इंटीजर। हमने इसकी कंडीशन फिक्स की किसी पॉजिटिव इंटीजर पे जो अननोन है, अननोन पॉजिटिव इंटीजर है, अननोन नेचुरल नंबर है। आपने वहाँ पे कहा चलो मान लेते हैं ये किसी हद तक सही है, उस हद पे हमने एक लाइन मारी, उसका रखा हमने n इक्वल टू के पे ये सही है, या n इक्वल टू m पे भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका अजम्पशन सेटअप कहलाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट you are assuming, this implies p of k, n को हमें यहाँ देना है k is equal to 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11। तो आपने सेकंड सेटअप में क्या किया, ये मान लिया कि भाई ये सही है फॉर n इक्वल टू 11। इसका मतलब क्या है, जब ये सही है, मल्टीपल या डिविजिबल बाय 11 है, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस p ऑफ k एज 11 टाइम्स सम पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 11। सो यू कैन राइट दिस इंप्लाइज वी कैन राइट p ऑफ k इज 11 टाइम्स सम से पॉजिटिव इंटीजर, वायर मैं यहाँ पे लिखूँगा 11m, where m is some positive integer। क्योंकि ऊपर p ऑफ 1 ही पॉजिटिव आता है, इसलिए n इक्वल टू 2 पे हम जाएंगे, वहाँ भी आएगा पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ जब हमने एज्यूम किया कि रिजल्ट सही बनता है, ये होल्ड करता है n इक्वल टू k पे, मीन्स p ऑफ k जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 मीन्स इसको डिवाइड हो सकता है 11 से, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ हमने लिखा इसके साथ ज़रूर आएगा 11 इंटू m। ठीक है, तो अब हमें मेन सेटअप लेना है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये रिजल्ट जो है इट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो वहाँ से क्या होगा, फाइनल सेटअप। तो हमें वेरीफाई हुआ कि दैट 10 रेज पावर टू n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। अब आप देखिए हम इसका वो सेटअप जो है फाइनल सेटअप वो कैसे करेंगे। मैं रब करता हूँ इसको। हाँ, तो हमने ये एज्यूम किया दैट रिजल्ट इज ट्रू, होल्ड्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k। assumption setup means 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is 11 times some positive integer। ये हम यूज़ करेंगे। देखो एक खास बात है, पहले हमें लिखेंगे यहाँ पे हमें रिजल्ट जो इंडक्शन सेटअप में क्या करना है, हमें इंडक्शन फाइनल सेटअप ये होता है। इसको कभी कुछ ऑथर्स लिखते हैं कंक्लूडिंग सेटअप भी, इंडक्शन सेटअप भी, फाइनल सेटअप भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी वेरीफाई that the result also holds true for n equal to k plus 1। k प्लस 1 k पे एज्यूम किया, क्या उसके बाद ये सही है? कभी ऐसा होता है कि n इज इक्वल टू 1 पे भी सही होता है, आप एज्यूम भी करते हैं, लेकिन इंडक्शन सेटअप जो है, फाइनल सेटअप जो है वो वेरीफाई नहीं होता है, उस पर सही नहीं होता है। आप उसको कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रू इन जनरल, अगर ऐसा होगा कभी। चलिए तो हमें प्रूव करना है n इक्वल टू k प्लस 1। दिस मीन्स दिस इम्प्लाइज टू शो, या मैं लिखूँगा आपके लिए क्या शो करना है हमें, टू शो p ऑफ k प्लस 1। n को आप रिप्लेस करना है k प्लस 1 से, इट इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स 2, वहाँ जो n था हमें 2n, वहाँ लिखना हमें k प्लस 1, यहाँ प्लस 1 है, k प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1 है, ये हुआ 2n माइनस 1, दैट इज 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये हमें बेटा आप प्रूव करना है।
लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रूव करने का ये है, जो हमने एज्यूम किया रिजल्ट n इक्वल टू k के लिए, उसका यूज़ होगा, उसका यूज़ ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए ये एक्चुअली क्या मीन करता है, ये इंडक्शन सेटअप, ये जो आपका ये सेटअप है इंडक्शन सेटअप, इंडक्शन सेटअप में ये ज़रूरी है कि आपको इंडक्शन सेटअप में P ऑफ K जो है शुड इम्प्लाई P ऑफ K प्लस 1। ये आपका अजम्पशन है, assumption setup, and this should imply P of K plus 1। ये जब हम कहते हैं मैथमेटिकली P of K should imply P of K plus 1 या P of M आपने assume किया for n equal to M where M is any positive integer, that should imply P of M should imply P of M plus 1। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना चाहिए, यानी कि मेरा मतलब यह है कि जो आपने ये सेटअप लिया, इस सेटअप को यूज़ करके ये प्रूव करना है, इसको यूज़ करना है। चलिए अब हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखिए आप, हमें अब ये प्रूव करना है कि P ऑफ K प्लस 1 जो है ये भी जाएगा डिविजिबल बाय 11। देखिए कैसे, दिस इज P ऑफ K प्लस 1, दिस इंप्लाइज P ऑफ K प्लस 1, इट इज़ 10 रेज़्ड टू पावर 2K प्लस 2 माइनस 1, ये आएगा आपका प्लस 1। जब आप 2 इनसाइड लेंगे 2 प्लस माइनस 1 दैट इज प्लस 1 प्लस 1। अब मैंने क्या कहा आपको, ये प्रूव करना है इट इज़ डिविजिबल बाय 11। कैसे जाएंगे, इसका यूज़ करना है, 10 रेज़ पावर 2K माइनस 1 प्लस 1 का यूज़ करना है। देखिए कैसे होगा, यहाँ मेरे पास है 10 रेज़ पावर 2K प्लस 1, मैं यहाँ लिखूँगा 10 रेज़ पावर 2K माइनस 1, जो मुझे ज़रूरत है, जिसका मुझे हेल्प लेना है, जिसके मदद से मुझे प्रूव करना है P ऑफ K प्लस 1। आई विल राइट इट हियर, इट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2K माइनस 1 ये चीज़ इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 देन प्लस 1 अपना। इंपॉर्टेंट सेटअप है, इसी से आपको मिलेगा ये। देखो 10 रेज़ पावर 2K माइनस 1 ये मुझे ज़रूरत था, 10 रेज़ पावर 2 कैसे आया, मुझे ये लाना है। जब बेसिस सेम बनाएंगे पावर ऐड होगा, 2K माइनस 1 प्लस 2 आएगा, अगेन आपको 10 रेज़ पावर 2K प्लस 1। मैंने स्प्लिट इस तरह किया, इसको बाइफरकेट किया इस तरह, ताकि ये भी मिला और ये भी बराबर आया। ओके, अब मुझे यहाँ पे लाना है ये चीज़ 10 रेज़ पावर 2K माइनस 1 प्लस 1, यानी कि इस सेटअप में मुझे इन्वॉल्व करना है व्हाट 10 रेज़ पावर 2K माइनस 1 प्लस 1, यानी कि वो जो अजम्पशन सेटअप है वो यूज़ करना है। वो कैसे करेंगे, देखो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे ऐसा करूँ 10 रेज़ टू पावर 2K माइनस 1 इंटू 10 रेज़ पावर 2 मेरे पास है। ये 10 रेज़ पावर 2 तो मुझे बाहर लाना है, क्योंकि इसके साथ नहीं है 10 रेज़ पावर 2, इसके साथ 10 रेज़ पावर 2 है नहीं, इसको मुझे यहाँ से कॉमन लाना है। इसलिए अगर मुझे इसको कॉमन लाना है, मैं यहाँ पे करूँगा इसको प्लस, आप देखिए कैसे मैं करूँगा, मैं करूँगा यहाँ से इसको प्लस 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 10 रेज़ टू पावर 2, और अपना जो यहाँ पे प्लस 1 है वो प्लस 1 में बराबर लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस 1, ये है आपका प्लस 1। अब मैंने क्या किया, इनको ऐड किया 10 रेज़ टू पावर 2 और इसको साइमल्टेनियसली सेपरेट किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्यों, मुझे इसके साथ 10 रेज़ पावर 2 बाहर निकालना है। ये 10 रेज़ पावर 2 अगर बाहर आएगा, मुझे क्या ज़रूरत है, इन दो में से मैं वो कॉमन निकालूंगा, हमें मिलेगा 10 रेज़ पावर 2K माइनस 1 प्लस 1। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको कनेक्ट करता हूँ इस तरह। देखें, आप भी देखें, इट इज़ 10 रेज़ टू पावर 2K माइनस 1 10 रेज़ पावर 2 देन दिस प्लस 10 रेज़ टू पावर 2, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ क्योंकि एक चीज़ मुझे ज़रूरत है, किस लिए, P ऑफ K के लिए। फिर बचता क्या यहाँ पे, माइनस 10 स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए आप, ये मैं यहाँ पे 10 रेज़ पावर 2 कॉमन ला के क्या आएगा, ये 10 रेज़ पावर 2K माइनस 1 प्लस 1 आया। इसी के लिए मैंने काम किया था, ये लाने के लिए 10 रेज़ पावर 2K माइनस 1 प्लस 1 वो आया। ये देखिए, ये आता आपको 100 प्लस 1। अब ये क्या आएगा, 10 रेज़ पावर 2, व्हाट इज दिस, इट इज P ऑफ K, दिस अजम्पशन सिस्टम P ऑफ K, व्हाट इज दिस, इट इज माइनस 99।
ठीक है, दिस इज 99। यू जस्ट लुक, तो यहां से मैं जाता हूं यहां, आइए यहां पे। सो आपको मिलता है P ऑफ K प्लस 1 इज 10 रेज टू पावर 2 जो बाहर है। P ऑफ K क्या हमारे पास है, 11m, 11 टाइम्स m, देन माइनस 99। ओके, आप तो 11 इसको कॉमन निकाल सकते हैं, 11 को कॉमन निकालिए, क्या आएगा ये m टाइम्स 10 स्क्वायर माइनस 9, 9 11 99। अब बाहर क्या आया इसको कॉमन 11, क्या आपको डिवाइड कर सकते हैं आप इसको 11 से, डिवाइड कर एग्जैक्ट डिवीजन, वी आर टॉकिंग ऑफ एग्जैक्ट डिवीजन, यानी कि जब हमने नीचे 11 लगाया तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बनता है, ये डिवाइड होता है, इंटीजर आना चाहिए डिवाइड करने के बाद, फ्रैक्शन नहीं, अगर फ्रैक्शन आया तो इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो हमें क्या यहाँ पे अगर 11 लगाएंगे हम, ये तो कट जाएगा, सो हम कहेंगे मैथमेटिकली यस इट इज़ डिविजिबल बाय 11, यस यस इट इज़ डिविजिबल बाय 11, ये हमें बना डिविजिबल बाय 11, जब ये डिविजिबल बाय 11 है, सो दिस इम्प्लाइज दैट P of K is also true. P of K plus 1, sorry, P of K plus 1, P of K plus 1 is also true, assumed for n equal to K, and we have proved it that it also holds true for n equal to K plus 1. Do you follow? Okay, so ये प्रूव हुआ, लेकिन आप लिखेंगे बाय 10 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, 10 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, 10 raised power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। ये मैंने बताया, ऐसे क्वेश्चन बहुत से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कोई क्वेश्चन होगा प्रूव दैट इट इज डिविजिबल बाय 47, डिविजिबल बाय 27 वगैरह, तो इसी तरह आप जाना, याद रखना जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये एज्यूम जब आपने कोई चीज़ किया, अजम्पशन सेटअप, उसको यूज़ करके इंडक्शन सेटअप, फाइनल सेटअप प्रूव कीजिए, उसी से आपको मिलेगा, पता चलेगा उससे क्या ये सही है कि नहीं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो इसके बेस पे आपको बहुत से टेक्स्ट आपके पास है, इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स है, या आपको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक्स है, सेंट्रल बोर्ड, वट एवर बोर्ड यू हैव, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन लाइन में दिए हुए हैं, तो आप उनको उठाए, आप उस तरीके से आप जाए। और मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा क्वेश्चन, जस्ट वेट, मैं इसको रब करता हूँ। आइए गाइस, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम और हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास x रेज पावर 2n माइनस y रेज पावर 2n, you have to prove that it is divisible by x plus y for all positive integers and or for all natural numbers n। as usual क्या करेंगे हम, इस स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं बाय, we write let the given statement be denoted by p of n which is equal to x raised to power 2n माइनस y रेज टू पावर 2n। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से वी वेरीफाई इट फॉर n इक्वल टू 1, देन वी एज्यूम इट फॉर n इक्वल टू m और k, देन वी शैल वेरीफाई इट फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक सेटअप, बेसिस सेटअप। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम यूज करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या हो रहा है, ये आएगा आपका p ऑफ 1, इट इज x रेज्ड पावर n को दीजिए 1, इट इज 2 माइनस y 2 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसके फैक्टर्स आपको पता है, ये आप लिख सकते हैं x प्लस y इंटू x माइनस y। क्या इसको आप डिवाइड कर सकते हैं x प्लस y से? ऑफ कोर्स। क्वेश्चन इस तरह भी आता है, प्रूव दैट x रेज पावर 2n माइनस y रेज पावर 2n जो है इट इज अ मल्टीपल ऑफ x प्लस y। यस, मल्टीपल। अगर आप नीचे लगाएंगे x प्लस y डिवाइड करेंगे, एकदम कट जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 रहता है, फ्रैक्शन नहीं रहता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय, यस इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y, क्योंकि ये हमें बना मल्टीपल ऑफ x प्लस y और अदर फैक्टर है x माइनस y। अब हम क्या करेंगे, इसको
इसके बाद हमारे पास है अजम्पशन सेटअप। अजम्पशन सेटअप, अजम्पशन सेटअप में क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं। लेट अस assume that given स्टेटमेंट या रिजल्ट की लिखिए आप, गिवन स्टेटमेंट और रिजल्ट holds true for n equal to m, where m is some fixed positive integer, some fixed positive integer। तो क्या आपने assume किया, that means you are taking for granted, you are taking this assumed that p of m, what is p of m, is equal to x raised to power 2m minus y raised power 2m, n को देना है m, आपने assume किया n equal to m के लिए, is divisible by x plus y। जब आपने assume किया by, ये रिजल्ट सही बनता है n equal to m के लिए, मीन्स p of m जो है it is a multiple of x plus y, because you are assuming it is true for n is equal to m. So what does this mean? This implies that when you say it is divisible by x plus y, this means our p of m is x plus y times into है ये times some positive integer, let it be say m मैंने इन्वॉल्व किया, let it be p, या मैं लिखूंगा यहाँ पे t, x plus y into t, where t is some positive integer, where t is some positive integer। ओके, हमने इसको assume किया for n equal to m, means when it is true for n equal to m, that means p of m can be written as x plus y times multiple of x plus y times some integer। अब हम प्रूव करेंगे क्या ये सही बनता है, किसके लिए, n equal to m plus 1। फाइनल सेटअप, that will be the last induction setup। just see how we go। हाय गाइस, अब इसमें लास्ट सेटअप हम कर रहे हैं। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट जो है ये सही बनता है। टू वेरीफाई द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, हमने एज्यूम किया था n इक्वल टू m के लिए, अब हम प्रूव करेंगे इट इज ट्रू फॉर व्हाट m प्लस 1, यानी कि p ऑफ k प्लस 1, हमारे पास p ऑफ n क्या था, x रेज पावर 2n माइनस y रेज पावर 2n, वहां पे n को दिया हमने k प्लस 1, सॉरी m प्लस 1, आई एम सॉरी m प्लस 1, m प्लस 1 है यहाँ पे, इट इज m प्लस 1, m प्लस 1 प्लस 1। तो हमें, मैंने बताया आपको हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यू करना है कि m ऑफ m जो है इट शुड इम्प्लाई m ऑफ p ऑफ m प्लस 1। जब हमने रिजल्ट को किया एज्यूम फॉर n इक्वल टू m, दैट इज p ऑफ m, उसके मदद से हमें ये प्रूव करना है कि इट होल्ड्स ट्रू फॉर व्हाट n इक्वल टू m प्लस 1। देखिए हम कैसे जाएंगे। सॉरी, m प्लस 1 में लेना है। दिस इज p ऑफ m प्लस 1 इज इक्वल टू, इट इज x रेज टू पावर 2m, x रेज टू पावर 2, बेसिस सेम पावर एडेड, ये आएगा एक्चुअली आपको 2m प्लस 2, ये मैंने लिखा इस तरह, माइनस y रेज टू पावर 2m इंटू y रेज टू पावर 2, 2m प्लस 2 मीन्स y रेज पावर 2m। अब एक्चुअली मुझे क्या लाना है, आप देखिए, मुझे ये चीज लाना है, p of m is x raised to power 2m minus y raised to power 2m, वही मुझे बनता है p of m। ये मैंने क्या किया, it is x minus y times some integer t, x plus y, सॉरी हमने ये assume किया कि ये सही है for n equal to m। अब देखिए क्या करेंगे हम, अगर मैं इससे मदद लूंगा,
मुझे एक्स रेज पावर 2m यहाँ पे है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा करूंगा, मैं तो यहाँ करूंगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट, दिस एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज पावर 2m। आप कहेंगे क्यों? जब मेरे पास एक टर्म आएगी प्लस एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 2m, दूसरा आएगी माइनस एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 2m, ये जो दूसरी है माइनस एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 2m, वहां से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, मुझे एक्स रेज पावर 2m माइनस वाई रेज पावर 2m आएगा। जरूरी नहीं है, अगर मैं इसका मदद लूंगा, अगर मैं इसका मदद लूंगा ये चीज, या मैं और करके लिखूंगा यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ वाई रेज पावर 2m है, आई विल राइट एक्स रेज टू पावर 2m को मैं ऐड करूंगा और इसके साथ वाई स्क्वायर को कॉमन, इसका लेंगे एक पॉजिटिव एक्स रेज पावर 2m, इसके साथ कनेक्ट, वहां भी आएगा आपको एक्स रेज पावर 2m माइनस वाई रेज पावर 2m। याद रखिए, या तो इसके लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे ये चीज, क्योंकि ये इसके साथ है, ये कॉमन आएगा। अगर आप इसका मदद लेना चाहते हैं, इसके लिए करेंगे, दोनों ने इकट्ठे, या तो ये करना है या ये, मैंने और लिखा बीच में। देखिए हम कैसे जाएंगे अब। दिस इज योर पी ऑफ m प्लस 1, ये लिखूंगा मैं इसी तरह एक्स रेज पावर 2m इंटू एक्स स्क्वायर। यहां मैंने कहा मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा व्हाट, वो हम करेंगे, ऐड करेंगे प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 2m, और सब्ट्रैक्ट करेंगे यही चीज एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 2m, और अपना जो यहाँ पे है वो लिखेंगे एज इट इज, वो इसी तरह लिखा माइनस वाई रेज पावर 2m इंटू वाई स्क्वायर। मैंने ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया इसलिए ताकि ये कॉमन आएगा। अब मुझे क्या क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं कनेक्ट करूंगा ये चीज और ये चीज, क्या आएगा ये, इट इज एक्स रेज पावर 2m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 2m, देन प्लस करके क्या क्या बचता है यहाँ पे, ये आता है एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 2m माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज वाई रेज पावर 2m। डू यू फॉलो मी? यहां से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स रेज पावर 2m माइनस वाई रेज पावर 2m, वो चीज आया प्लस। अब यहां से वाई रेज पावर 2m कॉमन, it is x square minus y square. Okay, what is this one? This is your assumption stuff, x square. This is your assumption stuff, p of m. This is p of m. हमने assumption stuff का यूज किया क्योंकि p of m should imply p of m plus 1, जो p of m आपने assume किया। यहाँ से इसके दो फैक्टर्स y raised power 2m into x square minus y square। अब आप देखिए क्या हो रहा है इसका, अभी देखें, दिस इज योर p ऑफ m प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो मैं लिखूंगा दोबारा p ऑफ m प्लस वाई रेज पावर 2m। किसी को मत दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं दोबारा लिखता हूं, वरना जरूरत भी नहीं था। देखिए क्या हो रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर, व्हाट इज योर पी ऑफ एम, अजम्पशन स्टफ, दिस वाज योर एक्स प्लस वाई टाइम्स टी, सम पॉजिटिव इंटीजर टी जो हमने एज्यूम किया, ये पी ऑफ एम, यहाँ से वाई रेज पावर 2m, व्हाट इज दिस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्लियर। यहाँ से ये कॉमन लाएंगे, व्हाट इज दिस एक्स प्लस वाई x plus y times x square t is some positive integer plus y raised power 2m x minus y, क्योंकि x माइनस हमने कॉमन लाया। अब ये क्या बना p ऑफ m प्लस 1, ओ भाई इट इज अ मल्टीपल ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई थ्रू आउट कॉमन आया है, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, आप ये डिविजिबल बाय x प्लस वाई है, दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। आप देखिए बाहर थ्रू आउट आया आपको x प्लस वाई, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ m प्लस 1 इज डिविजिबल बाय व्हाट x प्लस वाई।
तो याद रखें, जब हमने एज्यूम किया रिजल्ट फॉर एम के लिए या के लिए, हमें इस अजम्पशन सेटअप का यूज करके पी ऑफ के प्लस वन या एम प्लस वन लेना है, प्रूव करना है। तो उसके मदद से हमें वो फैक्टर जो पी ऑफ एम में इन्वॉल्व है वो यहाँ कोशिश करना है, वो उस फैक्टर को लाना है। तो फिर अदर थिंग जो है वो ईजी बनते हैं, वो ईजिली आपको मिलेंगे। तो इट इज एम प्लस वन इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन, 10 by principle of mathematical induction that x raised power to n minus y raised power to n is divisible by what? X plus y for all positive integers n। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किए कि जहां हमें प्रूव करना है कि कोई स्टेटमेंट मल्टीपल ऑफ समथिंग है या डिविजिबल बाय समथिंग है, तो वो कैसे हम करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये लेक्चर नंबर 5 था, लेक्चर नंबर 6 में हम आपको आपके साथ और शेयर करेंगे। तो तब तक आप देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में है या किसी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बुक में है या कहीं और आपको मिले, वो आप कीजिए इसी आराम से। और भी मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, 1-2 लेक्चर्स इस पे मैथमेटिकल इंडक्शन पे। देन वी विल गो टू बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हम करेंगे यही यूज़, क्योंकि इसके बाद ही बाइनोमियल थ्योरम इसी की मदद से हम प्रूव करेंगे, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। एंड टिल देन यू रिवाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।